Good evening, students. So you have studied in the solid state chapter of class 12 chemistry about the packing fraction and density of the crystal. In the last lecture you have studied about the density of the crystal. In that every years you will get the numerical problem based on the density of the crystal. So today we will discuss about the voids packing relation between the tetrahedral and octahedral voids. Dear student, as you know, the crystals, that's mean a solid compound, have a very closed packing. That's mean atoms are very closely packed. So if we study about the packing of the atoms, so we will see that there are two types of packings. Two types of packing. One is two-dimensional packing and second one is three-dimensional packing. As you know, crystal is three-dimensional structure, but for the study of three-dimensional packing, it is necessary to study of two-dimensional packing. In two-dimensional packing, we will arrange the atoms closely in only two directions, two axes. Suppose this is the atom. Atoms are spherical in shape. Second atom, third atom, fourth atom, fifth atom. This is one line of atom. These all are arranged in a linear line. If you arrange the second line, that's mean the atoms of the same type of element below these atoms like this. And then again third line, so this will be two-dimensional packing because you have arranged the atoms in this direction and this direction. If you arrange the atom in the three dimension, that means you have to place the atom above these atoms also. That means if you put the atoms according to the board, you will see on the board left side and right side, you are seeing the atoms on this perpendicular of the board. That's mean like this in air you will come, so it will be the three-dimensional packing. So in two-dimensional packing, that's mean we are studying when atoms are arranged in only two directions, it will be called two-dimensional packing. Two-dimensional packings are of two types. One type are drawn in front of you. This is a square two-dimensional packing. What is the meaning of a square two-dimensional packing? See here, आप देख रहे हैं ये एटम जो हैं, जो अलाइनमेंट इनका आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट से राइट में बनाएंगे तो बनेगी. एटम के सेंटर्स को मिलाएं, और अगर हम टॉप टू बॉटम भी बनाते हैं, सेंटर को मिलाएंगे तो एक अलाइनमेंट आता है. अगर बोथ साइड हमको अलाइनमेंट मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग बोला जाएगा. एंड यू विल गेट स्क्वायर इन इट व्हेन यू विल कनेक्टेड these atoms like this. You see this atom is touch the 1, 2, 3 and 4 atoms. So this is a square packing, and the coordination number of two-dimensional square packing is 4. क्योंकि आप कोई भी एटम को देखेंगे तो उस पर 4 एटम टच कर रहे होंगे. क्लियर? अगर आप टू डायमेंशनल दूसरी टाइप की पैकिंग को समझना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया टू डायमेंशनल दो तरह की होंगी. वन इज़ स्क्वायर पैकिंग, दिस इज स्क्वायर पैकिंग, एंड सेकेंड वन इज़ हेक्सागोनल पैकिंग.
हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा, फर्स्ट लाइंस के जो एटम्स हैं वो एज इट इज़ जैसे स्क्वायर पैकिंग में होंगे, सेट होंगे, लेकिन सेकेंड लाइन के एटम जो फर्स्ट लाइन के एटम का डिप्रेशन है, डिप्रेशन मीन्स जो गैप है, उसमें आएंगे सेकेंड लाइन के एटम लाइक दिस। और थर्ड लाइन के एटम इनके डिप्रेशन में आएंगे। सो इसमें एक साइड में तो अलाइनमेंट आपको देखने को स्ट्रेट अलाइनमेंट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, लेकिन जो दूसरा साइड होगा उसमें आपको स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पे एटम नहीं आ रहा है, ये एटम इधर है, तो स्ट्रेट लाइन आपको परपेंडिकुलर नहीं मिलेगी। इसमें आप एक एटम को चेक करेंगे जब, तो उसको 6 एटम टच कर रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ हेक्सागोनल पैकिंग। और हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा 6, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमें 2 डायमेंशनल पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ने के लिए 2 डायमेंशनल कंपलसरी है कि किस तरह से आप पैकिंग करेंगे। अब हम जब 3 डायमेंशनल पैकिंग में आते हैं तो इसके ऊपर भी हमको एटम्स को अरेंज करना होता है। 3 डायमेंशनल पैकिंग में 2 डायमेंशनल में जो लेयर्स बनी, इसको पूरे को हम 1 लेयर बोलेंगे या फर्स्ट लेयर बोलेंगे। दैट्स मीन ये जो एटम लगे हुए हैं ये एक लेयर मानी जाएगी। अब हम इसके ऊपर जब सेकेंड लेयर डालेंगे और थर्ड लेयर डालेंगे तो ये स्पेस में 3 डायमेंशनल में बोर्ड से परपेंडिकुलर आने लगेंगे लाइक दिस, और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बन के आएगी। ओके स्टूडेंट्स, so students, in the 3 dimensional packing, atoms will be arranged in the 3 direction, that's mean in x-axis, y-axis as well as in z-axis also. So I'm going to explain how you will find the 3 dimensional packing in hexagonal form. Hexagonal 3 dimensional packing, that's mean first lines atom this form arrangement, the second lines atom will come in the depression of first line, यहाँ पे आएंगे जो एटम का डिप्रेशन है, थोड़ा इसको आप एग्जैक्ट बनाइएगा, कॉइन का यूज़ कर सकते हैं आप इसको बनाने में। जब आप हेक्सागोनल पैकिंग करते हैं तो आपको एटम्स के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, चाहे जितना भी क्लोजली आप उसको रख लें, लेकिन आपको उन एटम्स के बीच में स्पेस ज़रूर मिलेगा। बिकॉज एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, यू आर सीइंग दिस स्पेस, दिस स्पेस, दिस स्पेस, दिस स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड void, VOID. The space between the closely packed atoms is called void. As you are seeing, there are 3 atoms here, atom number 1, atom number 2, atom number 3, and this is the void, that means the space formed by these 3 atoms. This void will be called ट्राइगोनल void, क्योंकि 3 एटम से बना है तो इसके बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको ट्राइगोनल void बोला जाएगा। और आप जब हेक्सागोनल पैकिंग करते हैं तो फर्स्ट लेयर में आपको ट्राइगोनल voids दिखाई देते हैं। एक void आप ये देख रहे हैं और एक void ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ट्राइगोनल voids हैं। यहाँ पे देखिए सारे के सारे ट्राइगोनल voids हैं। दैट्स मीन इन द हेक्सागोनल फर्स्ट लेयर यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ ट्राइगोनल void। मैं आपको सेपरेट करके voids के बारे में दिखा रहा हूँ। एक void आपको देखिए इस तरह का दिख रहा है, और दूसरा void आपको इस तरह का दिख रहा है। आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी 3 एटम है, इसमें भी 3 एटम है। ये void है ट्राइगोनल void, और ये भी ट्राइगोनल void है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जो शेप बन के आ रहा है void का वो ये शेप है, और इसमें जो शेप बन के आ रहा है वो ये शेप है। जब हम सेकेंड लेयर के एटम्स डालेंगे, दैट्स मीन इनके ऊपर हम एटम्स
को रखेंगे, ये फर्स्ट लेयर मान लीजिए, आप इसे ए लेयर कह सकते हैं आप, तो एटम्स ऑटोमेटिकली इन वॉइड्स में जाके सेट होंगे। सपोज़ कीजिए हम ये यहाँ पे वो एटम डालते हैं, डॉटेड से इंडिकेट कर रहे हैं हम। जब हम यहाँ पे एटम को रखेंगे तो ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर एक एटम आएगा लाइक दिस, और अब इस प्लेस पे देखिए 1 2 3 एटम तो पहले से थे और उसके ऊपर एक एटम और आ गया, टोटल 4 एटम्स हो गए। और इधर से तो दिखना बंद हो गया ऊपर से, लेकिन बैक साइड से अभी भी वॉइड है ये, और अभी 4 एटम से मिलके जो वॉइड बना है, दैट्स मीन ये केस हो चुका है आपका। इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अभी तक क्या था, ये ट्राइगोनल वॉइड था क्योंकि 3 एटम्स थे, अब इस पे 4 एटम्स हो चुके हैं। What is tetrahedral voids? Tetrahedral void, the space between 4 closely packed atoms is called tetrahedral voids. 4 एटम इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते, इसके बाद भी इसमें जगह है, और हमको वही स्पेस की रेडियस फाइंड आउट करनी होती है कि उसमें कितना बड़ा। आप देखेंगे अगर इधर से मैं कोशिश करूं तो इधर से तो कुछ नहीं है, ये एक एटम है, अगर हम इसको शेडेड कर देते हैं, इधर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बैक साइड से जाइए तो आपको स्पेस मिलेगा और उसमें एक छोटा एटम आ सकता है। तो उसको कितना बड़ा एटम आएगा ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये जगह जो है, जो स्पेस है, ये डिपेंड करेगा कि आप ये कितने बड़े एटम ले रहे हैं। अगर इस एटम को की रेडियस हम कैपिटल R मानते हैं, यानी ये एटम से वॉइड बन रहा है वो कैपिटल R है, और जो अंदर जो एटम लग रहा है छोटा वाला, उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला बनेगा वो होगा R इज इक्वल्स टू 0.225 इंटू कैपिटल R। इसके थ्रू हम टेट्राहेड्रल वॉइड में जो स्पेस है उसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हमको डेरिवेशन भी करना है और आज ही हम इसको कराएंगे। आज की वीडियो कुछ लेंदी होगी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बिल्कुल कंटिन्यूसली देखिए, और थोड़ा टफ है इसलिए टाइम लग रहा है इसको एक्सप्लेन करने में। अगर हम इसी तरह से एटम रखते हैं ट्राइगोनल वॉइड पे, तो सेकेंड लेयर आपकी बन जाती है। लेकिन जब हम सेकेंड लेयर के एटम्स को रखते हैं, जिसे बी लेयर हम बोलेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि एटम ट्राइगोनल वॉइड पे आ रहे हैं, और हमने आपको 2 तरह के वॉइड बताए, एक का शेप इस तरह का है और एक का शेप इस तरह का है। तो कोई एक ही तरह के वॉइड फिलअप हो रहे हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ है, और ये भी ऊपर की तरफ है, और ये भी ऊपर की तरफ। जो नीचे की तरफ जिनमें डायरेक्शन थी वो अभी भी खाली है, ये खाली है, ये खाली है। अब जब हम नेक्स्ट रखेंगे तो इस पे आएगा, और ये हमारी सेकेंड लेयर तैयार हो गई। ये बी लेयर है। इसको जब हम सेकेंड लेयर लगा लेते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, या इसको हम माने 2, 3 और इसको 1, ये वाले एटम को 1 माने, यानी 3 एटम्स हैं, और उसके बाद उसके ऊपर 3 एटम्स और आ गए लाइक दिस। और उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है। ये जो वॉइड है ये 6 एटम से मिलके बना है, 3 एटम्स in the first layer and 3 atom in the second layer. After that this space you can see. That's mean जब हम second layer B layer को लगाते हैं तो हमको फिर से एक नए तरह के void दिखने लगते हैं, जिसमें 6 एटम आपस में टच कर रहे होते हैं, और उस void को हम octahedral void बोलते हैं। octahedral void। लेकिन ये जो स्पेस है इसके कंपैरिजन में ये अलग स्पेस होगा, और इसमें कितना बड़ा एटम आएगा
इस फार्मूले से नहीं फाइंड आउट हो पाएगा। अगर इन एटम्स की रेडियस को हम कैपिटल R मानते हैं तो इसके अंदर जो स्पेस है, जो एटम आएगा, उस रेडियस R इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R. This is the radius of octahedral void formed by the atom of radius capital R. So dear student, in the second layer you will see the octahedral void as well as tetrahedral void. सेकेंड लेयर में आपको दो तरह के void फिर से दिखने लगेंगे। एक को बोला जाएगा octahedral void and second is tetrahedral void. Okay students, now I am going to put the third layer. See here, this is the most important line, and after this it will be declared that the packing of three-dimensional hexagonal. When we put the atom of the third layer in the octahedral voids formed, that means this is the octahedral void and you have to put the atom like this. So one layer, second layer, and this will be the third layer. See, you are seeing first atom, then little above second atom, then little above third atom. Like stairs you will see. This is the hexagonal close packing HCP. When the atoms of the third layer sit in the octahedral void formed by the layer A and layer B, this will be called hexagonal close packing. In this there are three layers, and you can say the arrangement in the hexagonal close packing will be A, B, C, A, B, C, A, B, C, A dot. इस तरह से आपको रिपीटेशन मिलेगा, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और उसके बाद फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, like this. So students, in this every atom touch 12 atoms. 12 atoms को टच करेगा कोई भी एटम in the HCP. coordination number will be 12. So आपने फ्रूट सेलर्स को देखा होगा, ऑरेंजेस को वो डेकोरेट करते हैं, इसी तरह से अरेंज करते हैं एटम। मान लीजिए ऑरेंजेस को आप, तो आप देखेंगे कि एक के ऊपर जाते हैं और स्टेयर्स टाइप की बनती चली जाती हैं, और टॉप पे ले जाके वो एक सिंगल ऑरेंज रखते हैं और ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। नाउ इफ़ यू विल सी फ्रॉम हेयर, यू विल नॉट सी एनी होल, एनी वैकेंट स्पेस हेयर. This is called HCP. Okay students, but you must know when you will draw three-dimensional packing or two-dimensional packing, you will see two types of void. That will be tetrahedral void and another is octahedral void. And the number of tetrahedral void, most important, number of tetrahedral voids is equals to double of number of atom. Suppose you are using n number of atom, so you put in this way, so you will get 2n number of tetrahedral voids. And number of octahedral voids will be equals to number of atom. ऑक्टाहेड्रल वाइड उतने ही बनेंगे जितने एटम्स होंगे, टेट्राहेड्रल वाइड उनके डबल बनेंगे. थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग टू टाइप्स की होती हैं. वन इज़ HCP, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इन द HCP थर्ड लेयर कम्स जस्ट in the octahedral voids formed by the first layer and second layer. So you will get three separate layers and the arrangement will be ABC, ABC, ABC. Coordination number will be 12. But my dear student, if the third layer comes just above the first layer, suppose कीजिए हम इस आइटम को डिलीट कर दें. ये भी एक टिपिकल जॉब है कि आप इस डायग्राम को बनाने के बाद उसमें वो आइटम को फाइंड आउट कर पाएँ. ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है. अगर हम
फर्स्ट लेयर, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर सेकेंड लेयर, और थर्ड लेयर के एटम को फिर ऐसा सेट करें कि वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाए, ये फर्स्ट लेयर के ऊपर ही एटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाएं. सो इट विल बी कॉल्ड CCP, cubic close packing. CCP. That means there are two types of hexagonal three-dimensional packing. One is HCP, another is CCP. In the CCP, the third layer comes just above the first layer, so you will see only two layers, A, B, and then the third layer will also be called A, B, A, B, A, B, like this. Okay, students. But the coordination number of CCP, cubic close packing, will also be 12. Okay. Now the numerical on the basis of this void concept. Suppose question is this: A atoms occupy the 2/3 of octahedral voids of B atom. What will be the formula? See answer. अगर आपने स्टडी नहीं करी है और कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है और आप कैसे जानोगे कि क्या फार्मूला बनेगा. सी बोल रहा है कि ए के एटम बी के थ्रू जो वाइड बन रहे हैं उन पे के 2/3 पार्ट पे आते हैं. सपोज नंबर ऑफ बी एटम इज इक्वल्स टू n. हमने लेट कर लिया कि n एटम है बी के, और हमने बताया अभी कि जितने एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. सो जैसे यहाँ बता रहा कि ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात चल रही है, सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल्स टू n. जितने एटम होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे. अब इन वाइड्स में पूरे पे ए नहीं आ रहे, क्वेश्चन कह रहा है 2/3 ऑफ. सो नंबर ऑफ ए एटम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ n. दैट्स मीन 2n/3. इतना आपको करना है और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा. नाउ सी फार्मूला लिखने के लिए क्या करना है. हमने a निकाल लिया, a आया 2n/3 और b हमारा n आया. हमको n कॉमन लेके हटा देना है और जो फ्रैक्शन में जो चीज़ है उसको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, यानी कि हमें 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देना है. तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल बाई 3, तो a2 और मल्टीप्लाई 3 b3. This is the formula. See another question. P atoms occupy 1/5 of tetrahedral voids of Q. What will be the formula? So see answer. Let number of Q atom is equals to n. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, इस क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वाइड की बात करी गई है, इज इक्वल्स टू 2n. क्योंकि बताया गया नंबर टेट्राहेड्रल वाइड जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके डबल होते हैं. अब उन्होंने बोला कि p एटम्स ऑक्यूपाई 1/5. दैट्स मीन नंबर ऑफ p एटम इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2n. So
So 2n upon 5. Now formula is equals to P here, P2n upon 5 and Qn. So 5 multiplied by here, so P2 Q5. This is your answer. Okay students. Now dear student, derivation for the relation of R and R. As you know, I have told R upon capital R is equals to 0.225 for tetrahedral. तो ये हमको ड्राइव करना है. See here, this is a cube. Of side A. If we attach the atoms at alternate corner, here, not here, then here, not here, then here, not here, then here. So 4 atoms will be in the cube's corner. They touch one another, so it will form tetrahedral, and the space between them will be called tetrahedral voids. इसका मीनिंग ये है कि ये एटम ये वाले एटम को टच कर रहा है, ये वाला इसको भी टच कर रहा है, ये वाला इसको टच कर रहा है, लेकिन हम इसको फिगर में नहीं बना सकते हैं. अगर फिगर में बनाएंगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सी हियर, इफ हियर इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B point. If we attach this is a face diagonal of the cube, so you will write AB is equals to, according to the Pythagoras theorem, this is A, this is A, this is the hypotenuse, this is right angle, so it will be A root 2. और मैंने आपको बोला कि ये एटम इसको टच कर रहा है, फिगर में नहीं बना है, लेकिन ये यहाँ तक है सपोज कीजिए और ये यहाँ तक है. जब ये टच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R होगा. इसकी रेडियस एटम की R, तो वी कैन राइट हियर R प्लस R, दैट्स इक्वल टू A रूट 2. सो 2R इज इक्वल्स टू A रूट 2. सो R इज इक्वल्स टू A रूट 2 बाई 2. दिस इज इक्वेशन 1. This is a cube diagonal. This point D, and this is capital M. AD, according to the cube diagonal, AD will be equals to A root 3. A root 3. क्यूब का डायगोनल जो होता है वो A root 3 होता है. और ये इसका सेंटर है, सो AM इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा A रूट 3 बाई 2. ये जो प्लेस है, जैसे मैंने बताया, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और उसके बाद भी बीच में स्पेस होगा. यही वो स्पेस है जहाँ पे कोई एटम आ सकता है छोटा, जिसे हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे, और वहाँ पे हम एक छोटा एटम लगा रहे हैं. लेकिन ये जो एटम लगाएंगे ये चारों एटम को टच करेगा, और इसकी रेडियस हम स्मॉल r मान रहे हैं यहाँ से, यानी ये वाला इस वाले को टच करेगा. तो ये AM को जगह पे हम, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, वी कैन राइट कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू A रूट 3 बाई 2, इक्वेशन 2. बस यही सबसे टफ है जो आपको समझना है. अब आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, सो यू विल गेट R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R. दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू A रूट 3 बाई 2 अपॉन A रूट 2 बाई 2. This 2 like this, and split this R upon capital R plus small r upon capital R, that's equal to root 3 upon root 2. This 1 plus small r upon capital R is equals to root 3 upon root 2. So R plus capital R
is equals to root 3 upon root 2 minus 1. If you will solve this, you will get the answer. R upon capital R is equals to 0.2247. That will be equals to 0.225. Okay, students, it's enough for today. Tomorrow we will discuss about the relation between R upon R is equals to 0.414 for octahedral wire. Thank you. Good night.